My name is Dr. Anush Masood, and I'm a gold medalist in MBBS. And I joined Police Service of Pakistan in 2012 after a CSS examination. And I belong to Lahore. I was born and brought up in Lahore, and my grandfather migrated from Amritsar. I had good memories from my childhood. I was very close to my father, mother as well. But I was like the youngest, being the youngest child. I was most ladla bacha of the house, yet so focused and studies के बारे में बहुत conscious. Right from the beginning, I think I can recall कि 5-6 years onward, I just had that in my mind. Doctor बनना है. Anybody asked me कि क्या बनना है? बड़े के doctor. यही जवाब था मेरा हमेशा. कोई और प्लान नहीं था उससे पहले. It was from like 2003-4 onwards, like 5 years का वो, and then 1 year medical house job. When you go to the medical college, आपकी दिन रात का पता नहीं होता था. मुझे याद है कि सोते थे रात, सुबह 2 बजे सोए, 4 बजे उठ गए. Literally that was the routine we had when we were in medical college. और सारी रात जाके पढ़ना, ड्यूरिंग द लेक्चर सो जाना. फिर हाउस जॉब में प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो गई. आई गॉट माई फर्स्ट पे. दैट वाज डिफरेंट एक्सपीरियंस. एंड आई केम होम एंड आई वाज लाइक, I got my first pay, and that was probably a very minimum amount of money. And I still remember my father said, okay, अब आपको pocket money तो नहीं चाहिए ना? And I said, no, ये बहुत meager amount है, यहाँ पर रख ले, मेरी pocket money मुझे दें. That was, याद आती है जो वो चीज़ें, तो भी सोचते हैं कि अच्छा वो दिन इस तरह था जब फर्स्ट डे आपको अपनी पे मिलती है. My sister, my brother, everyone was abroad, and I was the only child with my parents, and I was also preparing for USMLE. I had to go to US as well. Suddenly one night my father passed away. I never thought of CSS before that. And after my father passed away, my mother was alone here. उस वक्त decide किया कि अच्छा नहीं, फिर पाकिस्तान नहीं छोड़ना. I'm not gonna leave my country, and my father was so deep rooted here. हमेशा वो कहते थे नहीं पाकिस्तान अपना मुल्क है. और फिर उसके बाद फिर सोचा कि CSS करना है. एग्ज़ाम देने तक फर्स्ट चॉइस नहीं पता थी क्या रखूँगी. एग्ज़ाम दे दिया. मेरी फैमिली में भी काफ़ी लोग फोर्सेस में हैं, तो यूनिफॉर्म ऑलवेज ये लगता था जैसे पार्ट ऑफ मी है. समवेयर इन माई हार्ट इट वॉज पार्ट ऑफ मी, द यूनिफॉर्म. सो दैट्स द रीज़न. फिर मैंने PSP अपनी फ़र्स्ट चॉइस रखी थी. और उस वक्त भी जो पैनल था इंटरव्यू का, उस वक्त थे चेयरमैन भगवान दास. ही वॉज़ वेरी, उन्होंने मुझे बड़ा ग्रिल किया वाइवा में कि क्यों रखनी है पुलिस सर्विस. मुझे लग रहा एक टाइम पे मुझे लगा कि आई वोंट बी एबल टू कन्विंस हिम कि बिकॉज पहले किसी ने सिर्फ फर्स्ट चॉइस रखी नहीं थी किसी फीमेल ने. एंड देन ही सेड व्हाई यू वांट टू जॉइन पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान if given chance. Then we had a lot of debate. It is very close to medical profession as well. Somebody comes to you who is aggrieved, and if you can help that person, इससे बड़ी satisfaction कोई है नहीं है. So मुझे ये हमेशा लगा कि it's a very big platform to give relief to people. And when I told this, so he smiled. And then I still remember he just got up from the chair. He took a round of the room, and I was like, what is he doing? And then he just came and sat back on the seat and said, but आप देखिए ना कि इस तरह होगा और आप कैसे करेंगी मैनेज. मैंने कहा सर देखें, only passion can beat the best logic. And then he was like blown away. Result आया. We saw it on the internet, of course. मेरी 34th पोजीशन थी पाकिस्तान में. मुझे किसी फ्रेंड की कॉल आई और उसने बताया. मैंने कहा अच्छा. कहते हैं डॉक्टर साहिबा आप तो एक्साइटेड नहीं. मैंने कहा नहीं ठीक है, आई मीन ओके फाइन. एंड देन आई जस्ट टोल्ड माई फैमिली. अच्छा उनको मेरी फर्स्ट चॉइस का इतना ज़्यादा पता नहीं था उस वक्त. एंड दैट वाज अ सरप्राइज फॉर देम एज वेल. माई मदर वॉज बिट स्केप्टिक कि कैसे होगा ये. उस वक्त फिर एक और नई डिबेट शुरू हो गई. Then obviously they said, Inshallah, you will be able to handle this. It was
6 months और बड़े रिग्रेस थे और हर पार्ट से लोग आए हुए थे, सिंध से, बलूचिस्तान से और KPK से, all the cultures together. It was very homogeneous kind of environment. Then we used to have cultural nights. उसमें कुछ चीज़ें बिल्कुल हमें शायद नहीं पता थी एक दूसरे की. We got to know each other so well and it was a connection between all the provinces. बड़ा अच्छा एक blend हुआ. Hectic भी था बिकॉज सुबह सुबह हमने जाना होता था कि लेक्चर अटेंड करने और वहाँ बायोमेट्रिक होती थी. वो फिज़िकल एक्टिविटी भी होती थी हमारी शाम में जिससे हम बहुत भागते थे सारे क्योंकि बहुत थके होते थे और लेकिन इट वाज फन. तो बिकॉज वहाँ पे स्पोर्ट्स थी, मुझे स्पोर्ट्स में शुरू से इंटरेस्ट था तो वो एक अच्छा पार्ट साथ में. मुझे इंटरेस्ट हमेशा स्पोर्ट्स में रहा है. फिर शाम में रात में फिर पढ़ना, सुबह के लिए पढ़ना, एकेडमी की लाइब्रेरी 2-2 घंटे ओपन रखवानी कि नहीं अभी हमने नहीं जाना, बुक्स पढ़ के खोल के पढ़ रहे हैं. उसके बाद 6 मंथ्स के बाद हम नेशनल पुलिस एकेडमी गए. उसके भी ऑलमोस्ट 8 मंथ्स से 9 मंथ्स के दौरान और वो ट्रेनिंग करनी होती है, ये लॉ का पढ़ना होता है. फिर उसके बाद यूटीशिप करने के बाद फिर आपकी पासिंग आउट होती है. वंस यू आर पास्ड आउट तो फिर आपको लगता है कि शायद आप थोड़े थोड़े अफसर बन गए हैं और उसके बाद फिर प्रैक्टिकल पोस्टिंग शुरू हो जाती हैं. तो प्रैक्टिकल पुलिसिंग देखने शुरू की. फिर लग पता गया घर से ज़्यादा दूर होने से ना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक भी था क्योंकि ना मदर से दूर बड़े मेरे लिए वो एक चीज़ थी कि मदर से दूर रहना. फिर मैं हर वीकेंड लाजमी लाहौर जाती होती थी. तो बस उसके बाद फिर जल्दी से जब ट्रेनिंग ख़त्म हुई ये अल्लाह अल्लाह करके तो उससे सोचा है फिर यहाँ वापस आए तो बड़ा फिर बेहतर फील किया. KPK में भी पोस्टिंग की मैंने एंड आई वॉज द फर्स्ट एवर female ASP posted in KPK. So, but I would tell you, experience wise, हालांकि कल्चर हमारा बड़ा फ़र्क है, but they're very respectful. मुझे ये लगता था कि फीमेल्स के लिए वहाँ डिफ़िकल्ट है, but to be honest, बड़े अच्छे लोग हैं वो. ये बिल्कुल सोच जो मेरे ज़हन में थी कि पता नहीं एज फीमेल एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे या कुछ, ऐसा नहीं था. They were quite receptive और बड़े कोऑपरेटिव और बहुत ख्याल रखने वाले. मुझे वहाँ का स्टाफ अभी भी याद आता है कि वो बड़ा ख्याल रखते थे. दे वर वेरी वरीड अबाउट मी. ये लाहौर में भी मैंने ज्वाइन किया 16 में तो तब भी बहुत डिफ़िकल्ट टाइम्स थे. यहाँ मेरे दोनों का ब्लेंड था. देयर वाज अ फैक्ट्री एरिया टाइप और फिर एक डिफेंस वाली साइड. जब ज्वाइन किया तो यही था कि बड़ी स्लिपरी पिच है लाहौर की. ओवरऑल आपको पता है फास्ट पेस है तो पहले डर लग रहा था कैसे होगा बट वंस यू जस्ट स्टार्ट डूइंग थिंग्स और जब आप चीज़ों को देखने लगते हैं अच्छे तरीके से कि इधर क्योंकि आपको पता है डिफेंस में ज़्यादातर यही होता है कि एक एंटायरली डिफरेंट क्लास जिसमें बहुत सारे कल्चरल वो जिसे कहते हैं सिफारिशों से लेके और हर चीज़ बहुत ज़्यादा होती है. सिफारिश मीन्स यही है ना कि जी ये ऐसी चीज़ है, ये फ़लाँ का बेटा है, ये फ़लाँ की बेटी है, इसको ऐसे करना है, देख लें. एंड हैंडलिंग ऑल दोज थिंग्स कि मेरिट भी इंश्योर करना है और चीज़ों को भी हैंडल करना है. डीलिंग विद दोज काइंड ऑफ पीपल. और एक तरफ ये था कि चुंगी अमर सद्दू जैसी जगह पर जहाँ पे एकदम ब्लॉक हो गया, मेट्रो बंद कर देंगे एंड आप वहाँ पे बैठे खड़े 2000 बंदे को देख रहे हैं कि यार हटो यहाँ से, कैसे बात करनी है इनसे. लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. I still remember we used to sit in one office and whole Lahore police is sitting and we are discussing what to do and how to handle these people. इनसे बातचीत कैसे करनी है. because एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगी गवर्नमेंट का भी और क्योंकि ये चीज़ें ट्रिकल डाउन होती हैं, उनका भी यही था कि नेगोशिएशन बातचीत से मामला हल किए जाएँ. इसलिए कभी कोई वायलेंस नहीं हुआ है. उस पर फिर हमारे ब्लाइंड एसोसिएशन की चीज़ें भी बहुत, आपको याद होगा नाबीना बहुत धरने दे रहे थे उस टाइम पर. मैंने बिल्कुल इनिशियली जब ज्वाइन किया था तो 3 बहुत बड़े ब्लास्ट हुए थे जिसके अंदर भी लॉस्ट आवर ऑफिसर्स एज वेल. ये एक ब्लास्ट हुआ था फैसल चौक में. आई वाज सिटिंग इन माय ऑफिस एंड आई रेड द स्लाइड ऑन टीवी कि ब्लास्ट हुआ है. क्योंकि उस वक्त चूँकि हो रहे थे तो जिसकी इंटेंसिटी का आइडिया एकदम फिर मुझे पड़ा. DIG मुबीन शहीद, SSP गोंदल शहीद. was like, what is going on? We were like shocked and so on. We lost many other officers as well, junior ranks. और फिर वो एक पूरा इससे ट्रांजिशन सी लग रही थी लाइफ में कि उनके फ्यूनरल्स अटेंड करना, उनकी फैमिलीज से मिलना एंड कंसोलिंग देम. एंड लगता था कि कोई चीज़ कंसोल नहीं कर सकती इस चीज़ को. मतलब
और अभी भी हम उनकी, जब वो दिन आता है तो हम उनकी जाते हैं, घर वालों को मिलते हैं। एंड देन सीरियसली अगर मैं आपको बताऊँ, उस वक्त पता नहीं होता था कि हमारे जो उस वक्त सीनियर्स थे और हम सब ऐसे निकलते थे घर से कि जैसे पता नहीं वापसी होनी है कि नहीं होनी। वो तो हमेशा ही हर रोज़ होता है, लेकिन वो एक अलग फेज़ था, बड़ा ट्रोमेटिक था। और उसके बाद एक जेड ब्लॉक में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, बट चूंकि वो सैसल चौक वाले में हमारे बहुत सारे ऑफिसर शहीद हुए, वो बहुत ट्रोमेटिक था। सो इफ़ यू थिंक लॉजिकली यू कैन नेवर डू दिस जॉब। आपको ये जज्बे से ही करना होता है। एक सिपाही, हम सब सिपाही हैं। एक सिपाही को अगर कोई चीज़ चला सकती है, उसको चीज़, इफ़ समथिंग कैन यू नो कैन कीप the soldier going on, is just his or her passion. The PSL got revived and it was a big challenge for whole Lahore police and we were like on toes. उस वक्त बहुत थ्रेट था, उस वक्त तो एक्टिवली ब्लास्ट हो रहे थे। सो उस टाइम पर बहुत दफ़ा ये द गवर्नमेंट वेंट बैक एंड फोर्थ कि कराना है भी है PSL या नहीं कराना, बट देन लाहौर पुलिस टुक लीप ऑफ फेथ, आई मस्ट से, कि उन हालात में सक्सेसफुली PSL करवाना और उसको रिवाइव करना क्रिकेट को लाहौर में, आई थिंक बहुत बड़ा क्रेडिट था लाहौर पुलिस के पार्ट पे। अब तो चीज़ें कुछ फॉर्मलाइज हो चुकी हैं कि प्लान्स बन चुके हैं, सिक्योरिटी प्लान्स बन चुके हैं। उस वक्त एक नया स्टार्ट था और हम लोग दिन रात इसी काम लगे हुए थे। सर्च ऑपरेशंस, कॉम्बिंग ऑपरेशंस हो रहे थे। आई यूज्ड टू गो लाइक 4 or 5 in the morning, चिल्लिंग सर्दी में, मतलब ठटरते हुए पहुँचते थे और उसमें फिर बहुत ज़्यादा ये था, जो टेनेंट्स रजिस्ट्रेशन से लेके होटल आए, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन सा नया बंदा आके रजिस्टर हुआ है उस इलाके में, एक एक चीज़ इट वाज ऑन द पेपर हमारे पास मौजूद थी। उस वक्त ये कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस हुआ कि जी ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर प्रोटेक्शन कैसे होनी है, टीम्स ने मूव कैसे करना है। और फिर उसके बाद मेरा जब फर्स्ट मैच यहाँ पे PSL में हुआ और मैं अंदर स्टेडियम में देखने गई, माई हार्ट बीट वॉज लाइक, यू नो, माई हार्ट वॉज बीटिंग लाइक दिस, ओह माय गॉड, एंड आई वाज प्रेइंग कि गॉड सब ठीक रहे, यू नो, अल्लाह ताला से यही थी दुआ कि सब ठीक रहे। लेकिन हम सबकी, मुझे लगता है, हार्ट बीट्स तेज़ होती थी उस वक्त जब मैच ख़त्म होता था। फिर हम शुक्र करते थे अल्लाह ताला का। जैसे मैंने PSL की बात की, इसी दौरान एक केस हुआ और वो था एसिड थ्रोइंग का। मुझे कॉल आती है कि एक लड़की के ऊपर तेज़ाब फेंक दिया किसी ने, कल्प्रिट भाग गया, नो क्लू, ओके, एंड आई साइड बाय साइड PSL चल रहा है, वी वर सो entrenched in PSL, and I met that girl in Jinnah Hospital, Burn Center में। I got so emotional when she said मुझे इंसाफ चाहिए, क्या आप मुझे इंसाफ दिला सकती हैं? And I was like, I said yes I will, मेरे बस में जो मैं करूँगी और आपको इंसाफ दिलवाने की पूरी कोशिश करूँगी, मेरा वादा है। We had very little time, उस कल्प्रिट के भागने से पहले वो कहाँ चला जाएगा एंड लाहौर से बाय। देन वी स्टार्टेड कैलकुलेटिंग कितने घंटे हुए हैं, किस टाइम पर इंसिडेंट हुआ, कौन सा कैमरा था, किधर था। करते करते पता चला कि उस लड़की से किसी से कोई शादी करना चाहता था, उसने इनकार किया था। मैंने कहा मुझे उसका जल्दी से नाम पता बताओ। पता किया, घर में नहीं है, भागा हुआ है। अब समझ नहीं आ रही थी क्या करेंगे, एंड वी जस्ट स्टार्टेड ट्रैकिंग। हमने चेक कराया तो पॉसिबिलिटी नज़र आई कि 4 जगहों पे ये जा सकता है। इट वॉज विहाड़ी, इट वॉज शकरगढ़, इट वॉज वो जो 2-4 बसेस उस टाइम पे निकली थी। आई मेड 4 टीम्स, अच्छा जाओ, पीछे जाना है, ये बंदा है, फ़ोन बंद है, ही हैड नो क्लू। अल्लाह के भरोसे और साथ अपनी जो मेहनत है लगे हुए हैं हम। करते कराते वो एक जगह पे हमें मुजफ्फरगढ़ की समझ लगी कि ये बंदा गया है। अच्छा जी, मुजफ्फरगढ़ गया है, वहाँ पहुँचे, आया था बट यहाँ पे चला गया है। नहीं नो, करते करते पता चला कि थोड़ा सा इनके साथ कहीं राब्ता फैमिली का किसी वडेरे के साथ रहा है। आई मेड कॉन्टैक्ट विद दैट वडेरा एट दैट टाइम। मैंने शायद देखें ये बंदा तो मुझे चाहिए और इस पर कोई बार्गेन नहीं हो सकती। ही वॉज क्वाइट लाइक, मैं फ़लाँ से बात कर लेता हूँ, मैं फ़लाँ से बात कर। मैंने कहा आप जिस मर्ज़ी से बात कर लें,
ये बंदा तो मुझे चाहिए है, ही इज़ नॉट गोना बी स्पेयर्ड। देन दैट वडेरा ब्रॉट हिम, जहाँ पे वो उसकी जगह थी, वो उसको उसने कहीं छुपाया हुआ था, वो एजेंसी जा रहा था, बाजोड़ एजेंसी निकलना था उसने, उसको अपने घर पे ले आया। अच्छा, अपने घर पे, उसके घर पे तो रेड करना आप भूल जाएं, क्या वो रेड क्या करनी है। उन्होंने फिर हैंड ओवर किया मेरी टीम को, मेरी टीम लेके यहाँ पहुँची, तो समझ लें विदिन 48 आवर्स उस बंदे को हमने क्लोज़ कर लिया। एंड देन द इन्वेस्टिगेशन स्टार्टेड, और उसमें उस पूरी केस फाइल को मैंने खुद तैयार कराया था। मोस्टली आपको पता है एसपी लेवल पे हर केस फाइल तैयार नहीं कराई जा सकती, एंड इट वाज द स्पीडिएस्ट ट्रायल इन द हिस्ट्री ऑफ एटीसी। एंड द जज वाज, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हिम, मैडम आपने ये केस फाइल तैयार कराई है, मैं देख रहा हूँ, और आई मस्ट अपलॉड यू, कि मुझे इसमें डेट देनी नहीं पड़ी, क्योंकि बिकॉज देयर इज अ सर्टेन वे ऑफ डूइंग इन्वेस्टिगेशन। इसको 6 महीने भी लग सकते थे, इसको महीना भी लगना था, महीने में ये केस कंक्लूड हो गया, उसको सज़ा हो गई, उसको 2 दफ़ा 25 साल की सज़ा हुई, उम्र कैद, और उसको दियत देनी पड़ी, और उसके अलावा उसको 10 साल जो उसकी शी लॉस्ट हर आइज, सो उम्र कैद। सो दिस केस वॉज वेरी, लाइक स्टिल आई रिमेंबर हाउ आई वर्क ऑन दिस केस अमंग अदर केसेस, बट दिस वॉज वेरी क्लोज टू माई हार्ट स्टिल। एक दिन रात को कॉल आती है 10 बजे, मैडम ट्रिपल मर्डर हो गया है, ड्यूरिंग डकैती हो गया। दैट्स अ लाइक ह्यूज थिंग इन लाहौर जैसे शहर में, ड्यूरिंग डकैती आपके 3 बंदे मारती है। इधर जी कॉलें आ रही हैं, सीएम ने नोटिस ले लिया है। मैंने कहा अच्छा भाई टाइम तो दें, 2 मिनट मुझे क्राइम सीन तो देखने दें। क्राइम सीन पे पहुंचते हैं, रश लगा हुआ है घर के बाहर, 3 बंदे कत्ल हो गए, एक घर की, 2 ख़वातीन और एक बच्चा, रूम्स के ड्रॉर्स खुले हुए हैं। ये आई वाज जस्ट समथिंग इज़ ऑफ, समथिंग इज़ ऑफ। ओके, ये एक लाश इधर पड़ी है, एक लाश इधर पड़ी है, बच्चे की लाश इधर पड़ी है, एंड आई जस्ट सॉ द ब्लड ऑन स्टेयर्स। ये स्टेयर्स पे ब्लड, मैंने अपनी टीम के बंदे को कहा चलो ऊपर चल के देखते हैं। ब्लड गिरता गिरता आगे भी पड़ा हुआ, ऊपर छत तक गया हुआ। तो ब्लड है तो इसका मतलब ये ज़ख्मी हुआ होगा बंदा खुद भी। मैं केम डाउन स्टेयर्स, मैंने कहा आला कत्ल क्या है? आला कत्ल छुरी था। डजंट मेक एनी सेंस। मैंने कहा ये छुरी से क्यों मारेगा? अगर आप डकैती करने आया तो छुरी तो नहीं लेके आएगा। अच्छा छुरी, मेरे को छुरी दिखाओ। छुरी देखी तो वो छुरी भी सब्जी काटने वाली छुरी। जस्ट क्लिक्ड। एक चीज़ को देखते ही पता लगता है कि इट्स अ क्राइम ऑफ पैशन। इट वाजंट लाइक कि किसी डकैती के दौरान, वो और चीज़ होती है। सडनली जस्ट आई फेल्ट कि इस खातून का फ़ोन कहाँ है? फ़ोन नहीं मिल रहा। अच्छा मिला तो हमने देखा वो 6 पासवर्ड लगे हुए। मैंने कहा एक घरेलू खातून के फ़ोन पे 6 पासवर्ड क्यों लगे हुए हैं? आई डिडंट गेट इट। ये दिस इज़ नॉट डकैती, दिस इज़ समबडी हु न्यू द हाउस। और उस पर करते करते मैंने कहा चले हम इसको बाद में एक्सप्लोर करेंगे। ये बंदा ज़ख्मी हुआ है और ये ट्रीटमेंट कराने जाएगा क्योंकि इसके ऊपर तक ब्लड लगा हुआ था। मैंने कहा भागा तो यही है यहाँ पे। मैंने यही कहा अपनी टीम को कि ढूंढो साथ वाले घरों में, करीब करीब कहीं कोई डिस्पेंसरी, कोई चीज़, हॉस्पिटल्स में जाओ। भेजा हॉस्पिटल्स में, तो एक घर के करीब वाले डिस्पेंसरी से रात को 2 बजे मुझे कॉल आती है, मैडम एक डिस्पेंसरी में एक बंदे की ट्रीटमेंट हुई है। मैंने कहा डिस्पेंसरी में ट्रीटमेंट, क्या ट्रीटमेंट हुई है? सर वो ज़्यादा ज़ख्मी था। वो तो पता ही था मैं ब्लड इतना गिरा है, तो उसको हॉस्पिटल में रेफ़र किया है। उसने कहा मैं यहाँ माई ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। मैंने कहा ओके, उसको नाम पता? नहीं जी नहीं पता, नाम पता। मैंने कहा जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पहुँच जाओ। 2-2 3-3 बंदे मैंने हर हॉस्पिटल में भेज दिए। और आई हैड बीन अप होल नाइट। 4 बजे के करीब, 4:15 मुझे कॉल आती है, मैडम एक बंदा है जिसकी सर्विसेज हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुई है, उसका अंगूठा कटा है। मैंने कहा पहुँचो और मुझे उसकी डिटेल्स दो। वहाँ से हमें डिटेल मिली। अब रात के बज रहे थे 5 बज रहे थे सुबह के। तो कहते मैडम सुबह कर लें कि अभी रेड? मैंने कहा अभी रेड करोगे तुम? अभी जाओ, अभी जाओ। मैंने आई ऑल्सो लेफ्ट द हाउस और मैंने कहा तुम पहुँचो, मैं अभी आ रही हूँ। उस जगह पहुँचे तो वो बंदा जो है वो अपनी पट्टी वट्टी करा के वहाँ पड़ा हुआ था और उसे दुबई निकलना था सुबह। तो ये पहुँचे हैं, साथ मैं भी पहुँच गई हूँ। उसको देखा तो जी मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरा तुम्हारा जो भी है उठवाओ, चलो चलो चलते हैं। ले गए उसको, फिर उसको पूछा, मान नहीं रहा था। then he told us what happened. He had friendship with that woman and उसको घर आना जाना था वहाँ पे। उस दिन को लड़ाई हुई है। उसने कहा कि मैं ये बात खोल दूँगा, समथिंग लाइक दैट।
इसने पहले उस औरत को मारा है, वो फिर सास थी उसकी, उसको मारा है, बच्चे ने चूंकि उसको देख लिया था मारते हुए तो बच्चे को भी मार दिया। फिर मुझे सुबह 11 बजे कॉल आई थी, इस बारे में पूछा जा रहा है। मैंने कहा नहीं, हम सॉल्व भी कर चुके हैं केस। तो हमने उसको विदिन लाइक 12 आवर्स सॉल्व किया उस केस को, और वो बड़ा टाइम था, वो एक टाइम फ्रेम था जिसमें वरना वो चला जाता, हमें पता न चलता उसकी चीज़ें ये वो। तो बड़ा क्लियरली चीज़ सामने आ गई और 3 मर्डर्स जो थे वो सॉल्व हो गए उसी वक्त। 9th में वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट। द इवेंट्स विच हैपेंड ऑन 9th में वर एब्सोल्युटली devastating for every citizen of Pakistan, because we used to think that army installations are safe, and they are the safest ones. If they can be attacked like this, then nothing is safe in here. We did not predict that this mob will be so violent. Our 53 police officials are injured. Some of them lost their limbs. Whoever had been involved in these activities of 9th May, they will not be spared. They will have to face the law. But ये भी है कि जितना जिसका जो रोल होगा उसके मुताबिक उसको एट्रीब्यूशन होगी, उसको सज़ा मिलेगी। वन शुड बी श्योर अबाउट दिस कि किसी के साथ ज़्यादती नहीं होगी। हमारी तरफ से ये कोशिश है कि जो जिसका जितना रोल बनता होगा उसी के मुताबिक उसकी तरफ सेक्शन ऑफ लॉ अट्रैक्ट होगा, किसी को भी नाजायज़ या हद से ज़्यादा या उसके किए हुए से ज़्यादा की सज़ा ना दी जाए। हम पुलिस रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा बात करते हैं। देखिए, मैंने जब ये ज्वाइन किया तो बहुत ज़्यादा ये था कि ये चलानिंग नहीं हो रही, अंडर इन्वेस्टिगेशन केसेस बहुत पड़े हुए हैं बहुत अरसे से और उसका कोई डिस्पोजल नहीं हो रहा। तो इसमें मुझे ये लगा कि हमारे फोकस की कमी है बहुत ज़्यादा। इफ़ वी जस्ट हम किसी एक तरफ जब फोकस कर लेते तो वी कैन अचीव आवर टारगेट। यू नो, आई वाज डिक्लेयर बेस्ट क्राइम फाइटर और मेरी फर्स्ट पोजीशन आई लाहौर में कि जिसमें चलानिंग, पीओज़ की अरेस्ट और गैंग्स को पकड़ने का रेशो बहुत सबसे टॉप पे था। मेरा एजेंडा क्या था? फोकस्ड वर्क। उसको हम करें तो मैं समझती हूँ रिफॉर्म ज़रूर होनी चाहिए, बट मुझे ये लगता है कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है अगर उसको अच्छी तरह फॉलो कर लिया जाए तो बहुत सारी चीज़ें अभी भी बहुत बेटर हो सकती हैं।